All right. So, welcome everyone. So today is our first formal session of our finance practical training program. So, you are very lucky and truly saying hand-picked. चुन चुन के आपको उठाया गया है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए. We could not select everyone who tried to get into this program, and with some objectives, we have chosen you all to continue with this program. The objectives of this program is manifold. In one line, if I have to say, it is about not to make you capable of doing one particular work, but to make you capable of doing any work. The theme of the work will be related to finance. And everything that we'll discuss over here, or will or whatever we'll teach, or whatever task will be given to you, will be sheer practical experience, which many a times you don't get in maybe initial 5 to 10 years of your work experience also. So in short, if I say it is 5 to 10 years of work experience compacted and packed in this short program. The success of this program lies in your participation. So if you don't participate in whatever discussion we are doing here, or in the sessions, or in the activities that are given, the time, the program will be of no worth for you. And if you participate, the value that you will reap out of this program will be valueless. You will cherish for lifetime that you got an opportunity to attend such program. There are some nuances as to how this program will operate. First of all, very means I will say you are very fortunate because I hardly get time from Girish sir to talk. It is very difficult to get his time, and he has devoted his time for you all. And he has created a system where we too can interact with you on one-to-one basis. So one-to-one system is all there in your Teams chat group. If you will see the Teams के अंदर एक chat का option है और उस chat में एक एक student के साथ group बनाया हुआ है. आपने ऐसा कभी इवन सीए या सीएमए की क्लासेस में भी नहीं देखा होगा इस तरह का पर्सनल चैट ग्रुप एक एक बच्चे के साथ कभी बनाया हो. सो ये चीज इसलिए क्या हुआ है कि आपकी क्वेरी यूनिक हो सकती है, आपकी क्वेरी पर्सनल और प्राइवेट भी हो सकती है, जो कि आप सिर्फ अपने मेंटोर से डिस्कस करना चाहते हैं. तो चैट ग्रुप में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोग को फॉलो करने हैं कि आप जब चैट ग्रुप में आएंगे तो यू विल नॉट बी talking about any kind of general stuff. It is only about the concerned queries related to your growth, which has to be addressed by either of us. And of course, the time is not free. So don't be in hurry to get the response, but you will surely get the response. Tentatively, we are expecting that we will be able to answer at least twice in a week. Okay? So this is the chat group concept which you have seen. Every week we are going to, if not every week, maybe at least twice in a month, we are going to have sessions like this. And that initially was planned on Saturday evening, but on request of many of you, we understood that Saturday evening is not commensurate with everyone. And the Saturday evening we had to do by 5 p.m. when we were doing on Saturday. Now we have moved to Wednesday 7 p.m., which is win-win for both of us because Saturday you can spend time with your family and friends as well. And Wednesday being 7 p.m. will not disturb us anyway, anywhere.
It will help us both ways, I guess. I request you not to miss any kind of session for any reason whatsoever. No excuses, no reasons. Because missed means missed. This opportunity is not going to come back. We are recording the videos. We don't know how the video's outcome would be. It's the first time that we are doing it. So I don't know how much impactful the videos would be. But surely when you will participate in the sessions, you will really get a lot of learnings. Okay. And now rest I am giving to Girish sir to brief you about the mindset that we are going to provide you in the program. Today may not be a lot of technical stuffs, but we need to orient ourselves as to how we will move ahead in this program. Okay. By the end of the program, there will be one task given to you, which we will expect that you will complete within the deadline that will be given to you. Yes. So welcome students. So as Satish sir also said, we have created one chat group with every student, and it is exclusive personal with the same intention ki while discussion dealings, you might have many queries which are unique to one. So it is not a class, it is not a course, it is not a tuition, it is not a thing whereupon you are being taught from the book on a standard manner. And it is the life skills. It is you have to understand how to be practical, how you are acceptable in the society, how you are able to work properly, how your seniors would like you to give work and delegate work, and how you will be able to perform. These are the basic things. And we believe that if you have all those basic understanding, which you call common sense, what we happen now, we say common sense बहुत common है, but common sense common नहीं होता है. Common sense is what you expect from someone. Even आप किसी के घर में अगर एक maid है, एक servant, एक helper है ना, even if you feel कि he is not working in a proper manner, you don't like it. अब उसको बोलते common sense नहीं है क्या? तो we believe that every finance person should have a common sense which a normal client, normal senior person would expect. ठीक है? So this is the broad understanding of this finance practical training program. आप लोगों ने शिव खेरा का नाम सुना होगा, most of the perhaps might have heard शिव खेरा. उनकी पहली बुक आई थी कि winners don't do different things, they do things differently. है ना? तो मतलब क्या हो रहा है कि आज हम जो काम कर रहे हैं कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, खाली तरीका अलग है. लाइक हमने टीम्स को कंट्रोल किया, तो वी आर टॉकिंग इन टीम्स, है ना. द आइडिया वाज दैट कि टीम्स को आप यूज करते करते हम इस पे ट्रेनिंग लेंगे, इसको सीख भी जाएंगे और हमारी मीटिंगें डिस्कशन चालू हो जाएंगे. हमने जैसे चैट ग्रुप बनाया, तो अगेन इज अ डिफरेंट थिंग जो सतीश सर ने बोला कि नॉर्मल में अगर कोई नॉर्मल क्लास होती है तो कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर इतना समय नहीं देता है कि आप 1-to-1 चैट ग्रुप बना के एक से बात करो, लिमिटेड ग्रुप में डिस्कशन करो, है ना. वी वांट लिमिटेड ग्रुप, वी वांट चैट ग्रुप सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली. तो इसीलिए इसको बनाया गया. अब एक चीज बताता हूँ मैं, चूंकि एक क्लासरूम सेशन नहीं है तो यहाँ पे हमें हड़बड़ी नहीं है कि हमें फटाफट एक लेसन कंप्लीट करना है, कोई सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई पढ़ाई कंप्लीट करनी है. यहाँ हमारा इंटेंशन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें चीजों को ग्रेस्प करना है. ठीक है. अब एक सवाल आता है कि मान लीजिए अगर हम कोई इनकम टैक्स की ट्रेनिंग ले रहे होते, है ना, तो अगर हम इनकम टैक्स या टैली की ट्रेनिंग ले रहे होते तो आप जाते हो, आपको सिखाता है टैली को कैसे ऑपरेट करना है, टैली के फीचर बताता है और आप टैली को सीखते हो. अब आप लेकिन जब प्रैक्टिकल दुनिया में आते हो तो आपको भी टैली को यूज करना है. हम यहाँ पे कहते हैं कि आपको टैली को सीखने की, या लॉ, इनकम टैक्स लॉ है अगर आप पढ़ते हो तो इनकम टैक्स की ट्रेनिंग मिलती है. हम कहते हैं कि इंसान ये समझ जाए कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर काम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. किसी भी अगर टैक्स को पढ़ना है, लॉ को पढ़ना, हम कैसे भर सकते हैं. कोई भी काम करना है तो बेसिक कॉमन सेंस ही अप्लाई करना है ना. तो हमें उस हर चीज को कॉमन सेंस लेना है ताकि हम लाइफ में ये किसी को ना बोले कि हमें नहीं आता, बिकॉज कॉमन सेंस लेवल तो आता है ना, तो वी कैन डू एनीथिंग. और मैं आपको बताऊं, मेरे सीए फर्म के अंदर में हमारे ऑफिस में कोई आदमी नहीं बोलता कि सर मुझे नहीं आता है, बिकॉज किसी भी काम को एक पढ़ा लिखा आदमी, अ मैन हु इज अ पर्सन हु हैज डन ग्रेजुएट कैन डू अप टू 50 to 60% लेवल वर्क. तो दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस कि बॉस क्या इशू है भाई. तो दैट इज हाउ इट इज. तो जैसे हम पढ़ाई के लिए बहुत समय देते हैं, करियर के लिए समय देते हैं, 12 पढ़ने में 15-18 साल निकल जाते हैं, फिर कॉम में निकल जाते हैं, फिर सीए में साल निकले जा रहे हैं, तो बहुत समय जा रहा है. हमें इस एफपीटी के अंदर में ये समझना है कि रियल लाइफ में दुनिया में लोगों को लोग कैसे चाहिए, व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, है ना, और हाउ वी शुड परफॉर्म एंड एक्ट.
उसमें बोलने के तरीके, कम्युनिकेशंस के तरीके, काम करने के तरीके, बॉस अगर कोई काम देता है नहीं आता है तो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें, कैसे एक्ट करें, ये सारे तरीके उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब हमने सबको टीम्स की आईडी सबको मिल चुकी है, ठीक है ना। अब ये आईडी क्या क्या काम कर सकती है, नीरज आप बता पाता होगा कि ये आईडी क्या क्या काम कर सकती है? ये जो आईडी मिली तो आपको सभी को आईडी मिली, सबको एक टीम्स की आईडी मिल गई, क्या आप जानते हो कि ये आईडी क्या क्या काम कर सकती है, इससे क्या क्या हो सकता है? नहीं आइडिया? किसी को आइडिया कि ये आईडी क्या क्या काम कर सकती है? क्या ये केवल लॉगिन आईडी है कि केवल हम टीम से लॉगिन कर सकते हैं, या क्या है ये आईडी? एनीबॉडी वुड लाइक टू से? कोई बोलना चाहेगा? नहीं, मैं बताऊं ये आईडी जो है ये एक लाइसेंस की है। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में अगर आप जाते हो तो इससे आप ब्राउजर पर, मोबाइल पर, आईपैड पर कोई भी लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट का अगर है उसको आपको उसकी ऑफिशियल की मिलती है। तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट में आप किसी सॉफ्टवेयर में जाओगे आपको इसको वर्क और स्कूल अकाउंट ऑप्शन आता है। माइक्रोसॉफ्ट वाले के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है वर्क और स्कूल अकाउंट। वर्क और स्कूल अकाउंट ऑप्शन के अंदर में आप जब जाओगे तो ये वर्क आईडी है, इसके थ्रू लॉगिन करने से आपको उसके फीचर्स इनहेंस मिलेंगे, सारे ऑफिशियल लाइसेंस आपको एलिजिबल हो जाते हैं। इस आईडी के थ्रू आपको वन ड्राइव के अंदर में मिनिमम 1 TB आपको स्पेस मिल जाएगा, 1 TB वन ड्राइव स्पेस मिल जाएगा, जो आप गूगल में कहीं आपको नहीं मिलती है। ये आईडी आपकी ईमेल का काम करती है, तो आप किसी को भी अगर बोलते हो मेरी ईमेल आईडी है तो ये एक्ट एज एन ईमेल आईडी। आप ये आईपी कॉलिंग पर है, तो हम लोग फ्यूचर में अगर फोन भी किसी को करने चाहेंगे अगर, तो आप इसी आईडी से इसी चैट ग्रुप में जाके वहीं से कॉल करोगे तो यही आईडी से फोन भी कर सकते हो। तो मतलब आप ये समझ लो कि हमें फोन करने के लिए कोई नंबर नहीं चाहिए। हमें क्लियर टू एक्सप्लेन? ये आप यस लोगों ने सर। किसी ने सोचा था कि ऐसा हो सक रहा है, या ऐसा लग रहा है क्या, या अभी कंफ्यूजन है क्या सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिगड़ नंबर के फोन कैसे कर सकते हैं? ऐसा किसी को डाउट है? डाउट तो होगा सभी को कि नहीं? जी सर। डाउट है ना? जी पहले यूज किया था एक बार। जी एक सर। बार यूज किया था, किसी और ने यूज किया ऐसा कोई सिस्टम फीचर? नहीं किया किसी ने? सर टेलीग्राम वगैरह में भी हैं फीचर्स। फीचर है, वेरी गुड। तो ये क्या, उस फीचर को क्या बोलते हैं? सर वो एप्लीकेशन से ही कॉल करते हैं। नाम बोलो भाई। वो जैसे हम लोग नाम पहले नहीं घरों में टेलीफोन के डब्बे होते थे, टेलीफोन पे से गोल गोल घुमा के फोन करते थे, है ना, मोबाइल में नंबर चाहिए, तो इस फीचर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आईपी कॉलिंग, है ना। सो इट इज आईपी टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें नंबर की जरूरत ही नहीं होती। सो विदाउट नंबर यू आर डूइंग इट। अच्छा, ये आईडी की और एक खासियत क्या है कि आप इसी आईडी को आप अपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जितने जगह आप यूज करो खोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई इस आईडी की बेसिक क्वालिटी। चैट ग्रुप आपको बता दिया कि हमने चैट ग्रुप क्रिएट किया है। तो व्हाट्सएप में जितने फीचर आप लोग देखते हो ना, आप समझो कि व्हाट्सएप, जीमेल, क्रोम, जितने फीचर आप लोग अपने लाइफ में आगे पीछे लेफ्ट राइट यूज कर रहे हो फॉर बिजनेस, फाइनेंस और मैनेजमेंट पर्पस, वो सारे के सारे फीचर समझो आप टीम्स में है। तो हम लोग गोइंग फॉरवर्ड टीम्स की भी 2-3 क्लासेस स्पेसिफिक लेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस यू कैन फाइंड इन द टीम्स, जो आपके काम करने के तरीके को, आपके डीलिंग करने के तरीके को बहुत स्मार्ट बना देंगे। मतलब कभी कभी हम जो परेशान होते हैं ना काम कैसे करें चीजों की, वो परेशानियां खत्म है, मतलब मेक लाइफ इजी, तो लाइफ पूरी पूरी इजी हो जाएंगी। तो हमने एक चैट ग्रुप बनाया। अब आपको बताऊं मैं टीम्स के अंदर में जब बात करते हैं तो हम जब कहते हैं व्हाट्सएप के अंदर में हम कहते हैं कि व्हाट्सएप मी, है ना, कि व्हाट्सएप कर दो। तो टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट होता है, व्हाट्सएप का मतलब व्हाट्सएप होता है। टीम्स में हम लोग एक तो कहते हैं पोस्ट। तो जब भी हम कहें पोस्ट तो जनरली वो पोस्ट हमें चैनल में मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊं टीम्स के स्ट्रक्चर में जैसे आपका एक चैट ग्रुप बनाया गया तो वो है चैट ग्रुप। उस चैट ग्रुप के अंदर में आप पोस्ट कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो, चैट कर सकते हो आप। तो उसमें हम लोग जब बोलते हैं ना चैट करो, तो मतलब आपको चैट बॉक्स में करनी है, चैट में चैट करनी है। हम कहते हैं पोस्ट करना है, तो जनरली आप देखोगे एक ग्रुप बना होगा आपका जिसका एफपीटी नाम है ग्रुप का। उस ग्रुप में एक चैनल बना हुआ है ना। तो जो एफपीटी उसका नाम है ग्रुप, उसको कहते हैं टीम्स ग्रुप या उसको कहते हैं ग्रुप। और उसके अंदर में जो चैनल बना हुआ है आप लोग का उसको बोलते हैं चैनल, जिसके अंदर में आप लोग एडेड है। हर इंसान को एक चैनल दिख रहा होगा कि 2 दिख रहे हैं कि 3 दिख रहे हैं?
अंगली ऐसे दिखा के बता सकते हो आपकी एक दिख रहा है कि दो दिख रहा है कि तीन दिख रहा है, इस ग्रुप के अंदर कितने चैनल दिख रहे हैं? एक दिख रहा है। एक दिख रहा है, किसी को दो दिख रहा है? ये सर एक प्राइवेट ग्रुप है और दो वैसे हैं, दो हाँ? पब्लिक हैं। आपको एफपीटी ग्रुप में कितने चैनल दिख रहे हैं? एक दो तीन। एक सर। में जाओगे तो आपको दिखेगा। आपको पता है चैनल कैसे दिखेगा? आपको मीटिंग में रहते रहते आप देखो ऊपर में कहीं लेफ्ट में आपको टीम्स लिखा होगा या बैक एरो दिखिए, आप बैक एरो ऑप्शन है आपके पास सभी हाँ, के फोन टीम्स में। में एक Back arrow जनरल है, करोगे? एक एफटीपी है। करेक्ट, तो आपको दो चैनल दिख रहे हैं, एक जनरल दिख रहा है और एक एफपीटी दिख रहा है, ठीक है ना? यस तो दो चैनल दिख रहे हैं। यस एक एक पसंद, नीरज तुमको दिख रहे हैं दो चैनल आपको? यस यस। नवीन आपको दिख रहे हैं दो चैनल दिख रहे हैं क्या? यस सर, दो चैनल दिख रहा है सर। मनीष, आदर्श? यस सर। यस सर। आदर्श दिख रहा है आपको? सर मेरा इसमें जो फोन का है वो हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, टाइम आप ले रहा देखो है। नीचे में एक बैक बटन होती है, फोन नहीं में सर, बैक फोन में एरो होगा। बैक एरो करोगे तो आपको एक बैक में ले जाएगा वो, और आपका ये जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी, नीचे पीआईपी मॉडल में चली जाएगी। दिखा? आपके मोबाइल पे बैक एरो क्या तो की एरो एरो बना हुआ होगा, या फोन में जो बैक एरो होता है ना नीचे में जो एकदम ग्राउंड में, उससे आप बैक करो। आप नॉर्मल फोन में जो तीन बटन होती है ना, सर नहीं, मैं सर साइन इन में मेरा इशू आ रहा था सर। साइन इन तो कर चुके हैं आप, तभी तो मीटिंग चल रही है। नहीं सर, उसमें लिंक्स भी भेजे थे ना सीधा मीटिंग में, मैंने उससे ज्वाइन करा है। कोई बात नहीं, तो आप तो उसी में आपके फोन में नीचे एक एरो है, तो फोन का जो नीचे जो तीन बटन होते हैं ना, साइन इन नहीं किया इन्होंने टीम्स। अच्छा साइन इन किया ही नहीं आपने क्या? नो सर। ओके, दिखा रहा है। अच्छा साइन इन किया ही नहीं आपने अभी तक, तो साइन इन में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर अभी वो पासवर्ड ही इशू का दिखा था, और जैसे जो लैपटॉप का था ना, तो मैंने पहले भी डाउनलोड करा था, तो उसमें बोल रहे थे कि स्टूडेंट से आपने करा हुआ है तो वर्क का हो नहीं रहा अभी। तो आपने पर्सनल में चले गए होगे तो लॉगिन नहीं करेगा आपको। हाँ, तो मैंने पहले से था तो फोन में कर रहा हूँ, फोन में भी आईडी तो एक्सेप्ट कर ली, पासवर्ड का देख रहा हूँ क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। और कभी भी इशू हो तो आप तो आपकी जो सुमन है उनको कनेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे सब हाँ, टेक्निकल वो भी इश्यूज को, करूंगा सर मैं। ही विल लेट यू हेल्प यू। तो अब किसी और को है जो नहीं दिख रहा है दो चैनल? कोई भी है क्या जिनको दो चैनल नहीं दिख रहा है आदर्श के अलावा? नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊं, जैसे आप लोगों को चैट ग्रुप सबको मिला, सबको दिख गया कि नहीं दिखा? दिख गया। तो मेरा ये कहना रहेगा, आप लोग सब प्लीज अपने अपने चैट ग्रुप में एक तो हेलो, हाय, गुड गुड इवनिंग कुछ भी पोस्ट करें, so that you start understanding कि how to post in a chat group, ठीक है ना? So everybody should please do that. और दूसरा मैं आपको बताऊं, जब भी हम पोस्ट करते हैं ना व्हाट्सएप में रिएक्शन, सब लोग जान रहे हैं आजकल रिएक्शंस यूज कर पाते हैं हम लोग, है ना? तो जैसे व्हाट्सएप में फीचर होते हैं रिएक्शंस को करना, रिप्लाई करना, तो हमें ये सब चीजों को धीरे धीरे सीखना है कि हमें रिएक्शन कब देना है। तो कभी भी कोई पोस्ट आए तो उसमें अगर हम लिखते हैं ओके, थैंक यू, ये सब गलत है। प्रोफेशनल आदमी को जितना कम टेक्स्ट पोस्ट करे, जो रेलेवेंट है उसी को डाले, वो अच्छा है। मान लीजिए मैं कहता हूं आप लोग सब शाम को 7 बजे आ जाइएगा, और अब हर आदमी नीचे ओके सर, ओके सर, ओके सर लिखता है, तो मैं कह दूं प्रोफेशनली मैं इस चीज को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा सामने वाला यार जब बेवकूफ आदमी है भाई। तो आप लोग मान के चलो ये सब कॉमन सेंस जो इस जमाने में चाहिए, क्योंकि जब रिएक्शन का फीचर अवेलेबल है तो आप अगर रिएक्शन के बटन दबा दो, तो मेरे ग्रुप में अगर 15 आदमी हैं तो मुझे 15 रिएक्शन से पता चल गया किसने किसने कर दिया, करेक्ट? अगर आप ओके लिखते हो तो ये अप्रिशिएबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले सीखना है इस जमाने में जहां हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आ गए हैं कि कम्युनिकेशंस को कैसे करें। तो हमें ये समझना है कि कब हम रिप्लाई का यूज करना है, कब हमें पोस्ट करना है, कब हमें रिएक्शंस को यूज करना है, करेक्ट है? मैं क्लियर टू से दिस? अच्छा,
चैट ग्रुप Yes. और चैट में क्या फर्क है, कोई बताएगा क्या कि चैट ग्रुप में कब पोस्ट करना चाहिए और चैट में कब पोस्ट करना है? ग्रुप में बेसिकली जब सबके रिलेटेड करना है और चैट में जब आपको स्पेसिफिकली करना है। नहीं, अब मान लीजिए मैं अगर बोलूं तो हमारे लिए, हम आपके अभी मेंटर हैं, तो आप मुझे पर्सनल कभी भी नहीं करने जाएंगे, क्यों करेंगे आप? बिकॉज मेंटर हम और सतीश सर हैं, तो आपका पर्सनल ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में और कोई है क्या? क्या कोई बता सकता है कि ग्रुप में कितने मेंबर है? कोई देख पाया है क्या? किसी ने देखने की चेष्टा की है? Yes, sir, मैंने कैन समवन 11 रिस्पॉन्ड टू दैट? हाँ, देखा था। मनीष, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये सर मैंने देखने का ट्राई किया था, ऑलमोस्ट 13 या 15 दिख रहे थे। हाँ, क्या है? 13 या 15 मेंबर्स थे सर, एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने सवाल क्या पूछा? कितने मेंबर्स दिख रहे थे देखने का किसी कहाँ ने ट्राई पर? कहाँ पर? किया? एक ग्रुप में। नहीं, मैंने ग्रुप तो नहीं बोला। क्या बोला मैंने? कोई बताएगा क्या सवाल पूछा मैंने? नीरज, क्या चैट सवाल में पूछ? कितने करेक्ट, पार्टिसिपेंट्स हैं? चैट ग्रुप में। जो चैट ग्रुप बनाया हुआ है आपका, उसमें कितने मेंबर है? सब 5। मेरे को लगे 5 मेंबर है। 5। करेक्ट। सो आप ये देख लो, जैसे अभी हम आपको चीज बता, मैं आपको और एक चीज बताऊंगा अभी आगे जाके कि क्या, हाँ, कहाँ मेजरली लोग गड़बड़ाते हैं काम करने में, या बॉस उनसे दुखी क्यों होता है, वो बॉस से क्यों दुखी होते हैं। तो आप समझ लो चैट ग्रुप में 5 जन है, ठीक है? तो ग्रुप वर्ड से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें समझना है कि चैट ग्रुप बोला जा रहा है कि ग्रुप बोला जा रहा है कि टीम्स ग्रुप है। तो चैट ग्रुप इज चैट, मतलब चैट में मिलेगा, सो दैट इज अ चैट ग्रुप। चैट ग्रुप हर एक इंसान का पर्सनल ग्रुप है, इसमें सारे लोग नहीं जुड़े हुए हैं। जो एफपीटी ग्रुप बना हुआ है, जो टीम्स का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर में जनरल में सबको दिख रहा है सब कुछ। लेकिन अगर आप देखो कि आपके चैनल में जितने लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, सारे आपके उस चैनल में नहीं है लोग। किसने नोटिस की ये चीज? ईमानदारी से कोई यस हाथ सर। उठा के बताना, क्या किसी ने नोटिस किया कि जितने लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपके चैनल में वो सारे नहीं है? किसने किया था नोटिस? सब पर्सनल ग्रुप में 5 मेंबर हैं, उसमें होस्ट मतलब वो जो ओनर है उसमें ओनर में 5 हैं, 5-6 ओनर मैंने देखे थे। किसमें? इसमें 2 ये जो पूरा ग्रुप बना हुआ है उसमें ओनर अलग थे और मेंबर अलग थे। नहीं, मेंबर हम ग्रुप लोग और चैनल का मतलब समझ गए क्या? ग्रुप किसको बोलते हैं, चैनल किसको बोल रहे हैं? जी। चैनल हमारा जो टीम पूरा हो गया वो चैनल हो गया नहीं, टीम का जो मेन हेड है, जैसे एफपीटी ग्रुप, वो ग्रुप हो गया। जी। उसके अंदर में जनरल एक चैनल है, एफपीटी करके नाम जो, वो एक चैनल है, ओके। ठीक है ना? एक ग्रुप के अंदर में हम मल्टीपल चैनल बना सकते हैं। अब समझना ये होता है कि हमें ग्रुप कब बनाना है, चैनल कब बनाना है, जो आप लोग धीरे धीरे इसीलिए आपको सीख जाओगे, क्योंकि आपको जब रियल लाइफ में काम करना है तो ये सारे आपको काम रियल डिसीजन लेने हैं। अब टीम्स को अगर हम बेंचमार्क ले लें कि टीम्स एक बेंचमार्क है हमारी कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने का, टीम्स एक बेंचमार्क है एक नई चीज को सीखने का, समझने का, टीम्स एक बेंचमार्क है कि चीजों को कैसे देखा जाए, टीम्स एक बेंचमार्क है अपने पे सिंपैथी कैसे नहीं की जाए, टीम्स एक बेंचमार्क है कि कैसे assumption से दूर रहा जाए। तो हम एक चीज को पकड़ लेंगे ना, वही चीज सब जगह अप्लाई होगी। मैं आपको बता दूं, जैसे टीम्स एक नया ऐप आया, अब मान लो बहुत स्टूडेंट अभी तक रहे होंगे, उन्होंने उसको देखा ही नहीं। मैं आज जब देख रहा था क्लास स्टार्ट होने के पहले, तो मैंने देखा किसी भी बंदे ने चैट ग्रुप में हाय, हेलो, थैंक यू, वेलकम कुछ नहीं लिखा। तो सोचो कितने डिफरेंट है। हाँ, अगर मान लो कोई आदमी कोई ग्रुप बनाया तो लिख सकता ना, हेलो सर, थैंक यू सर, कुछ भी लिख सकते थे हम। किसी ने कुछ नहीं लिखा। अब आप समझो, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और या आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? लाइफ में जो हमें चाहिए ना, वही हमारे सीनियर को चाहिए, वही हमारे बॉस को चाहिए, उसको कुछ डिफरेंट नहीं चाहिए। हमें लगता है भाई अटेंटिव तो रहे, तो हमें जब लगता है अटेंटिव रहे, तो हमारे सीनियर को भी लगता है अटेंटिव रहे। हमें लगता है अरे भाई देख तो ले, तो सीनियर को भी लगता है भाई देख तो ले। समझ गए आप? और मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी कहती है कि अगर हम एक पन्ने को टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक पढ़ लेंगे ना, हमारी नॉलेज हमारे किसी भी कंप्यूटर से बेटर हो जाएगी। ठीक है? तो अभी हम आ गए कि चैट ग्रुप समझ गए हम लोग, चैट, पोस्ट, रिएक्शन, चैनल,
ग्रुप, ये हम सब समझ चुके हैं, क्लियर है? सब समझ गए? Yes, कैसे sir. समझ गए? सब हाथ ऐसे ही उठा सकते हो यार, दिख जाएंगे सबके हाथ। करेक्ट, ठीक है ना? देखो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, लग रहा है कि सर तो बहुत सिंपल सी बातें, आप ये सब में क्या रखा है, मतलब मैडम, बॉस, सर, जितना आपको बता दूं मैं, हम जब प्रैक्टिकल दुनिया में उतरते हैं ना, हमारा नर्वसनेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हम कम्युनिकेशन करने में, चीजों को हैंडलिंग करने में बोलते आ रहे नहीं आता नहीं आता। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई, आज के दिन में क्लास 4 में जो बच्चा पढ़ता है ना, उसका कोई भी मोबाइल डिवाइस दे दो, वो शाम तक आपको चलाना सिखा के बता देगा। अब बताइए कैसे सीख गया है वो? 70 साल के हमारे दादाजी या 90 साल के दादाजी नहीं सीख पा रहे, उनको एक रिमोट चलाना नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मुझे एक समय तक एसी के रिमोट को यूज करना नहीं आता था। मैं किसी को स्टाफ को बोलता है एसी चला दो यार, फिर मालूम पड़ा भाई क्यों यूज करना नहीं आ रहा है। कोई बता सकता है क्यों यूज करना नहीं आ रहा होगा? क्योंकि मुझे फोकस ही नहीं किया, मैंने एफर्ट ही नहीं किया जानने का। मुझे लगता है यार कौन दिमाग लगाएगा, तो जब दिमाग नहीं लगाएगा तो हरदम हम झेल रहे उसी प्रॉब्लम को। रिमोट को कम करना है, बेसी करना है, ठंड बेसी है, गर्म बेसी है, कभी गर्मी की हवा आ रही है तो हम फंस जा रहे हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। हमें स्टाफ चाहिए कि अरे भाई देखो गर्म हवा आ रही है। वो स्टाफ भी सोचता होगा अरे सर रिमोट में तो सब लिखा हुआ है, उसमें ठंडा गर्म का बटन दिया है। और मान लीजिए आपको ठंडा गर्म का साइन नहीं पता, तो यूट्यूब पे जाएंगे, इस रिमोट को फंक्शन करने का तरीका बताओ, 5 मिनट में आप मेरे से बेसी स्मार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं मेरे अपने अनुभव से, यही तरीका हम में से कोई नहीं लगा रहा है। वो 5 मिनट का पेशेंस, 5 मिनट का समय नहीं दे रहे। अब हम पढ़ लिख के आ गए, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम करने आते हैं तो प्रैक्टिकल काम तो करना पड़ेगा। अब इसमें से एक कितनों ने स्टेटस पे कुछ डाला है क्या? एक दो ने तो डाला है, स्टेटस चेंज किया है कुछ। स्टेटस कहाँ है? व्हाट्सएप में टीम्स के चैट में आपके पास एक स्टेटस ऑप्शन है, देखा क्या किसी ने? एक बार जाके देखो अपने टीम्स पर। आप स्टेटस में, आप जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं ना हम लोग, यहां पे डाल सकते हैं स्टेटस में आप। तो मान लीजिए, अज्यूम करो, सपोज कीजिए आज 7 बजे कोई मीटिंग है और आपको लग रहा है कि मैं 7 बजे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, 7:15 पे ज्वाइन कर पाऊंगा क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, स्टकअप हो गया हूँ, कोई प्रॉब्लम में फंस गया, कुछ भी। तो आप स्टेटस पे भी डाल लेते हो अगर, तो कोई भी आदमी दिख जाएगा कि अच्छा स्टेटस में क्या लिखा हुआ है। किसी को स्टेटस नजर आया अभी तक? नहीं? नहीं दिख रहा है स्टेटस। अच्छा, अब नहीं दिख रहा का मतलब बताओ। टीम्स पे जाना पड़ेगा, टीम्स में जाके उसके सारे फीचर देखने पड़ेंगे। देखो बॉस, आप लोग ये मान रहे हो ना कि आज के दिन में क्लास के 4 के बच्चे को एक मोबाइल दे दिया जाए, चाहे आईफोन दीजिए, चाहे सैमसंग दीजिए, चाहे OnePlus दीजिए, चाहे रेडमी दीजिए, कोई भी दीजिए, वो 2 घंटे में उसको चला करके फिट हो जाएगा कि मुझे कैसे चलाना है। तो क्या हम उससे कमजोर हैं क्या? मेरी भांजी हम लोग 2 कमजोर साल नहीं की है, है। वो चला लेती है। करेक्ट, हम लोग कमजोर नहीं है, बट हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, हमें जब तक ये नहीं पता ना कि फायदा क्या है, हम दिमाग नहीं लगाना चाहते, बट दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये टीम्स के आप लोग एकदम फीचर को सारे के सारे समझ लो, और मैं आपको बता दूं ये टीम्स को ही मैं बेंचमार्क ले लूंगा कि कैसे हम लर्निंग को सीखते और नहीं सीखते हैं। मैं मेरी ऑफिस में ना बहुत बड़ा एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आप घर से निकलते हो, निकल के ऑफिस पहुंचे, रास्ते में कोई भी आदमी घर से जब निकल के ऑफिस पहुंचता है तो कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई टैक्सी में है, कोई बाइक में है, और मेरे ख्याल से हजारों लोग उसको पास थ्रू करते हैं। अब घर से निकल के जब वो ऑफिस तक पहुंचता है, वो क्रॉसिंग देख रहा, रास्ते में गिरा नहीं, किसी से भिड़ा नहीं, कोई गड्ढे में नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ उसको। बट उसको ऑफिस में पहुंच के पूछा जाए कि भाई किसी का चेहरा याद है, क्या बोलेगा आदमी? कोई चेहरा याद मिलेगा? नहीं मिला। तो क्या वो आंख बंद करके चल रहा था क्या? आंख तो खुली थी। फिर क्या हुआ? तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। तो मेरे भाई लोग, मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे इंटर्न्स, ये प्लीज समझ लो, हम लोग रियल लाइफ में भी ऑफिस में जब बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे काम कर रहे हो, हमें कुछ नहीं दिखता है। तो क्या जरूरत है? हमें जरूरत है हमारे कॉन्शियसनेस को इंप्रूव करना,
जब किसी काम में बैठे 100% फोकस करना, लाइक अगर हम वर्क में बैठ गए, जैसे अभी हमारे साथ बैठ गए, तो अगर किसी को असुविधा है वो बाहर निकल जाए, कोई हर्जा नहीं। जैसे कई लोग वीडियो बंद कर लेते हैं, अब मुझे समझ नहीं आती, भाई मुझे तो आपके चेहरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो क्यों बंद करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि सर बहुत बोरिंग लग रहा है, तो अटेंड क्यों करना, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो हमें अटेंशन 100% चाहिए, है ना। सो आप जब काम करते हो 100% अटेंशन देना है, कॉन्शियस को एक्टिवेटेड रखना है, अपने आप से सिंपैथी नहीं करनी है। और छोटे छोटे टेक्निक लगाओगे ना, आपको लगेगा कोई भी काम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हम सबसे पहले दिमाग से ना बोलते कि हमें नहीं आता है। जैसे टीम जब आई तो सबका ब्रेन बोलता होगा अरे पता नहीं क्या आ गया है, लेकिन जब आ गई तो सबने स्टार्ट कर लिया, सब डील करने लग गए। अभी सोचिए मुझे आप लोग को तैयार करने के लिए एक एक स्टेप, एक वर्ड बताना पड़ा, और मैं गारंटेड बताऊं, चूंकि इस टीम्स को एक्टिवेट किया सबने 3-4 दिन पहले किया, बट किसी ने इसमें फोकस किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। बट अगर फोकस करते या चैट ग्रुप पे किसी ने लिखा होता तो समझ में आते कि यस, दिया फोकस किया। ये टेक्निक मेरे बच्चों पहले समझ लो कि ये टेक्निक हमें लाइफ में लगानी है। हमें किसी भी कंपनी में अगर मान लो जॉब मिल जाती है, किसी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाती है, और हम जाके बैठ गए, सपोज करो आप चले गए, बॉस ने आपको कोई काम नहीं दिया, अधिकतर लोग क्या करेगा, बैठा रहेगा। तो 2 घंटा बैठे बैठे उगने मतलब उगताने लग जाएगा। 3 घंटे के बाद मतलब बोलने लग जाएगा कितना फालतू कंपनी है, 3 घंटा से बैठे कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाई, तुम सीखने जा रहे हो, तुम काम करने जा रहे हो, अगर कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो जिस इलाके में बैठे हो वहां तो आसपास की चीजें दिख रही है, ऑब्जर्वेंट तो बन सकते थे। अगर मान लो वहां कुछ किताबें पढ़ी थी, कुछ चीजें थी, हम वो देख सकते थे, समझ सकते थे कि क्या चीज है। तो हमें अपना समय इस तरह से यूज कर लेना है, ठीक है। अब मैं बताऊं ट्रेनिंग, जो हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, देखिए हम जब क्लासेस पढ़ते हैं ना, लाइक मान लीजिए स्कूल में बच्चा जब पढ़ने जाता है ना क्लास 4 में, उसके पास चॉइस तो नहीं है कि मिस आज क्या पढ़ाएगी। मिस आती है, सिलेबस निकालती है, क्योंकि मिस का एजेंडा सिलेबस कंप्लीट करना, है ना। वो आती है, बच्चों को पढ़ाती है, आगे बढ़ जाती है। हम अगर सतीश सर की कोचिंग में जाते हैं तो सतीश सर डिसाइड करेंगे क्या पढ़ाना है, वो एक सिलेबस बनाएंगे, कोर्स बनाएंगे और सबको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आप अगर टैली की ट्रेनिंग में जाओगे, ही विल फॉलो द सेम थिंग। हम इसको जो फाइनेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, हमें मतलब भाई हम यहाँ कोई चीज पढ़ा नहीं रहे हैं, ना हम इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं, ना हम कोई टैली का कोर्स करवा रहे हैं, ना और कोई कोर्स करवा रहे हैं। तो हम क्या करवा रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप दूसरों की समस्याओं को या खुद की समस्याओं को कैसे हैंडल कर सकते हैं, करेक्ट। ये टेक्निक अगर जान जाएंगे तो हम काम कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना, दैट्स इट। मैंने शायद पहले भी रेफर किया कि नहीं किया, मेरा छोटा भाई जो है वो बीकॉम है, चार्टर्ड नहीं है, और मेरी पूरी सीए की प्रैक्टिस वो पूरा अकेला हैंडल करता है। कैसे हैंडल कर लेता है, क्योंकि वो ये सोचने नहीं गया कि मैं सीए नहीं हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, बस उसने सोचा ही नहीं। आप लोग घरों में अपने मदर फादर देखोगे, जितने लोग व्यापार करते हैं ना, उनको कोई आता नहीं था व्यापार। और हरदम ध्यान रखे चलो, मैं एक मदर का एग्जांपल हरदम देता हूं, मैं आपको एक लिंक भी कर दूंगा, कॉन्फ्रेंस की शिफ्ट थी मेरी एक बार। देखो एक लाइफ में और एग्जांपल बताऊं, मैं हर चीज ना अपनी मदर से बहुत सीखता हूँ, फैमिली से, मदर से। सोचो हर घर में जो मदर होती है ना, जिसने सबने बच्चों को जन्म दिया। अगर किसी स्कूल में मैं कहता हूं कि मान लो अगर हम 100 बच्चे या आप लोग में ही एक कंपटीशन करवाया जाए कि आप लोग ये 15 जन मैच्योर्ड हो, समझदार हो, मिल करके एक सहमति से एक बच्चा, ये एक आदमी की मदर को सिलेक्ट कर लो जो बेस्ट मदर है, ठीक है। हम उस मदर को अमेरिका भेजेंगे या कोई इनाम देंगे या कुछ काम करेंगे। क्या आप लोग सब सहमति से एक मदर को बेस्ट मदर सिलेक्ट कर लोगे? जो कर लेगा वो हाथ उठाए, जो नहीं कर लेगा वो तो कोई बात ही नहीं है। कर सकोगे? कोई नहीं कर सकेगा। कर लोगे तुम? चलो ठीक है, तब तुम सेक्रीफाइस वाले आदमी हो। अब आता है कि हर बच्चे के लिए उसकी मदर बेस्ट मदर कैसे हो गई? उसने जरूरी है क्या कोई हार्वर्ड से क्लास करके आई, कोई ट्रेनिंग लेके आई, पढ़ी लिखी थी? कोई जरूरत नहीं है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर एक मदर हर बच्चे की मदर बेस्ट मदर बन रही है तो कैसे बन रही है भाई? गरीब हो सकती है, उसको कोई सब ट्रेनिंग नहीं मिली, कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई जॉनसन जॉनसन की बुक नहीं लिया, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया, कोई क्लास अटेंड नहीं की। तो उस मदर को क्या पता है मालूम?
उस मदर को सिर्फ एक चीज पता है, क्या है, कि ये बच्चा मेरा है। मेरा कहना है कि लाइफ में जब भी कोई काम करो, जब भी कोई भी काम, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, उसको अपना बच्चा बना और बोलो मुझे देखना है, ऐसा ख्याल करना है। अब मदर की खासियत क्या होती है मालूम है? मदर की खासियत ये होती है कि वो बच्चा के पेट में दर्द अगर है तो पहले तेल लगा देगी, दर्द ठीक नहीं हुआ तो पड़ोसी से पूछेगी अरे यार दर्द हो रहा है 2 दिन से, क्या करें। फिर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएगी, फिर ठीक नहीं हुआ दूसरे डॉक्टर के पास जाएगी। मेरे ख्याल से कोई भी इस चीज से सहमत नहीं होगा शायद कि वो 10 दिन 1 महीने के बाद बैठ जाएगी कि भाई तेरा पेट का दर्द तू बर्दाश्त कर, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ये कोई बोलने वाली है मदर? नहीं बोलने वाली है। वो कब तक पीछा नहीं छोड़ेगी? जब तक आंसर सॉल्यूशन नहीं मिल जाए, जब तक उसका बच्चा बोले कि ओके अब मेरे को पेट में दर्द नहीं है। इसी तरह से हम किसी भी काम के पीछे लग जाए मेरे भाई लोग, मुझे बताओ हम कैसे फेल हो सकते हैं? बट अगर हम ये थ्योरी अपनाएंगे नहीं, मैं बता दूं सक्सेस बहुत दूर है। और ये थ्योरी बना लेंगे अगर, तो आप मान के चलो बेस्ट मदर बेस्ट वर्कर बनने से कोई माइकल आपको नहीं रोक सकता। आप कितने भी बकवास से बकवास हो, कितना भी आपको नहीं आता हो, आपकी अप्रोच और आपकी तरीके अगर आ गए ना इस माइंडसेट से, बहुत समझ जाएगा कि बहुत से बंदा काम के पीछे लगा हुआ है। चलो, सो दिस इज द ब्रॉड थिंग। तो हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर में हम ये नहीं सीखना चाह रहे हैं कि किसी इनकम टैक्स को कैसे पढ़ा जाए, जीएसटी को कैसे पढ़ा जाए। हम ये सीखना चाहेंगे कि किसी भी कानून को अगर पढ़ना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, किसी भी काम को करना है, तो उसके बेसिक क्या तरीके हैं भाई, है ना। और उसको हम लोग प्रैक्टिकल गो थ्रू करेंगे। वी विल ट्राई टू गो थ्रू प्रैक्टिकल, अंडरस्टैंड हाउ प्रैक्टिकल इट इज डन। ठीक है ना। तो हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग अभी तक स्कूल में जब जाते थे या कॉलेज में जाते थे या कोर्सेज करते थे, हम लोग लिसन करते थे, रीडिंग करते थे, है ना, लर्निंग करते थे। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चीजों को ग्रेस्प करना है, अंडरस्टैंड करना है, डायग्नोज करना है ना, खाली पढ़ना नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब एक बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जब बीकॉम तक पढ़ाई पढ़ रहा होता है ना, तो वो पढ़ने के लिए पढ़ता है। बट जैसे ही वो प्रोफेशनल कोर्स में जाता है ना, वो पढ़ने के लिए नहीं करना होता है। मैं हरदम कहता हूं उसको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा कि जैसे ही आप सीए, सीएमए, डॉक्टर, लॉयर बन रहे हो ना, आपको उसको एप्लीकेशन करना है। बीकॉम तक की पढ़ाई आपको अब पढ़ने के लिए है, प्रोफेशनल पढ़ाई अप्लाई करनी पड़ती है आपको टू फॉर अदर्स। वो सिर्फ पढ़ने से, पास होने से नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, जो एक स्टूडेंट को जानने की जरूरत है। अब एक सवाल आता है कि प्रॉपर्टी हर एक के घर में होती है, हर एक जानते हैं कि प्रॉपर्टी होती है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी से हर इंसान जुड़ा हुआ है, उसके पेरेंट्स, उसके घर में, परिवार में। प्रॉपर्टी की डीड कितनों ने देखी है? एक बार हाथ उठाओ जरा कि प्रॉपर्टी की डीड, जो प्रॉपर्टी होती है उसकी डीड होती है ना, डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है, कितनों ने देखा है? सबने देखा है कि नहीं? सबने देखा होगा। अच्छा, कितनों ने उसको पढ़ने की चेष्टा की है? एक बार हाथ उठाया जरा, किसी ने पढ़ने की चेष्टा की उसको? हाँ पढ़े हैं थोड़ा। अच्छा, पूरा नहीं पढ़े लेकिन पढ़े हैं, थोड़ा पढ़े हैं। अच्छा उदय, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। तो आपने प्रॉपर्टी की डीड Yes, sir. देखी है? जी सर। देखी है। और आप तो ड्राफ्टिंग कर भी रहे हो, तो आप तो रोज ही देख रहे हो रेजर आप। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉपर्टी की डीड को आपने पढ़ा भी है? जी सर। पढ़ा है, वेरी गुड। अब मान लीजिए पूछा जाए कि किसी आदमी को, मतलब जो लॉयर नहीं है, एक घर का, मतलब यहाँ जितने स्टूडेंट हैं, अगर मैं कहूं कि आप उनको ये बताओ कि एक प्रॉपर्टी की डीड को पढ़ने में कितना मिनट लगेगा और प्रॉपर्टी की डीड को पढ़ना कितना कठिन या कितना आराम है, तो आप बताइए उसके बारे में। सर पूरा शॉर्ट पढ़ने में की एकदम। जरूरत नहीं, हाँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में पूरा डिटेल लिखी होती है, किसने किससे खरीदी है और किस नहीं, प्रॉपर्टी की डीड को पढ़ना मतलब इन सबको अगर बोला जाए कि आप सबको प्रॉपर्टी की डीड पढ़नी है, तो वो कठिन है कि इजी है? इजी है। इजी है, वेरी गुड। तो वो इजी की टेक्निक खाली बतानी है आपको कि कैसे इजी है कि ये लोग 5 मिनट में पढ़ लें उसको। फर्स्ट पेज पढ़ लीजिए, पूरी प्रॉपर्टी पढ़ जाएगी। हाँ, मतलब सारी चीज, सारे उसके जस्टिफिकेशन फ्रंट पेज पे ही होते हैं, फिर उसका okay. पूरा ब्रीफली दिया तो होता है आप फर्स्ट पेज। प्रॉपर्टी की डीड को कुछ पार्ट में डिवाइड करना चाहोगे, 1 2 3 4?
मान लो अगर 100 पन्ने की डीड है, सपोज करो एक हम्म। प्रॉपर्टी की डीड 100 पन्ने की है, तो एक साधारण जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं वो तो देख के डर जाएंगे, जी उनको लगेगा भाई हम तो लॉयर ही नहीं है यार। पापा बोला देख के बता बेटा क्या है, देख के बताओ तो बेटी क्या लिखा हुआ है इसके अंदर में। अब देख के जैसे ही बोला अंतरा घबरा जाएगी कि ओ माय गॉड मैं थोड़ी लॉयर हूँ, मैं तक कैसे पढ़ के सकती हूँ। ठीक है, तो उनको डरना चाहिए क्या? नो नहीं डरना चाहिए। तो उनको टेक्निक बताइए कि क्या टेक्निक हो कि वो फटाक से पढ़ के फादर को या पेरेंट्स को बता सकते हैं कि इस डीड में ये लिखा हुआ है, ये है डीड में। एक्चुअली क्वेश्चन होता है कि हमें ये पूछना है कि यहाँ प्रॉपर्टी हमें किससे मिली है, तो वो नहीं हमें एक starting सेकंड में एक मिल सेकंड जाएगी। उदित उदित उदित, अगर एक पेरेंट अपने बच्चों की बात कर रहा है वो तो डीड ले चुका ना, हाँ तो उसके लिए व्हाट आर द 4 की एलिमेंट या 5 की एलिमेंट या वेयर टू सी, हाउ टू सी, उस पे बात करनी है ताकि वो डरे नहीं 100 पन्ने पे, और उसके फादर को ये नहीं लगे कि भाई इसको तो डीड बताया मुझे कि यार एक बार मोटा मोटी समरी बता दो, वो 3 दिन निकाल दिया उसने। वो टेक्निक जानना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई टेक्निक है क्या? कोई बताना चाहेगा और कोई? मनीष? सर उसमें मेन चीज होती है कि अगर हमारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कोई डेट से तो हम ये बता कितने सकते हैं। पार्ट भी बता पाओगे? 2 3 4 5 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट? ये सर ट्राई कर ट्राई उसमें करनी है। अरे सुनो एक चीज और बता दूं मैं, अपने इस ट्रेनिंग में ना गलतियां कम नहीं करनी है, पेट भर के करनी है। yes, जिस किसी को आज तक गलती करने का मौका नहीं मिला, मेरा पहला उसूल है भाई पेट भर भर के गलती करो। जैसे अज्यूम करो आप टीम्स में बैठे हो, तो जितनी फाइल को डिलीट कर सकते हो, जितना चैनल को उड़ा सकते हो, जितना कर सकते हो सब पेट भर भर के करो। क्यों? अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर पा रहे हो तो पहली कमी तो हमारी है कि हमने कंट्रोल नहीं किया। आप स्टूडेंट हो, आप तो कुछ भी कर सकते थे। तो कल आप जब लीडर बनोगे तो आप अपने बॉस को बोलेंगे सर मैंने तो रुपया रखा, ताला लगाया, सुबह देखा ताला भी गायब है, रुपया भी गायब है। तो भाई इसमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तो आप मान लीजिए टीम्स पे काम कर रहे हो तो आपने फाइल डिलीट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, प्रेम भर के। तो हम लोगों को गलतियां होलसेल में करनी है, बिगड़ डर है समझे। ठीक है ना? हाँ बताइए, आप ट्राई कीजिए एक बार आप। सर फर्स्ट पॉइंट में सेलर बायर को हम देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड उसके उसका जो भी टिकट साइज है, प्राइस पॉइंट है, वो देख सकते हैं। टिकट से क्या मतलब, वो तो पैसा आ चुका है यार। हाँ ठीक है, तो हम वो प्रॉपर्टी खरीदने नहीं जा रहे हैं, हम प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। ओके, हम लोकेशन उसमें बता सकते हैं। तो एक चीज हो गई बायर और सेलर, यस सर। दूसरी हो गई प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट। नहीं, प्राइस पॉइंट वर्ड मत बोलो यार, अच्छा वर्ड दो उसको आप। ड्यूटी वैल्यू। हाँ प्रॉपर्टी वैल्यू या सेल प्राइस। नहीं, प्रॉपर्टी Consideration वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू वर्ड सही है क्या? नो कंसीडरेशन। सर, नहीं सही नहीं है, करेक्ट। क्यों सही नहीं है प्रॉपर्टी वैल्यू? सर क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ हो सकती है, जबकि मैंने जितना पैसा दिया वो 50 लाख हो सकता है, जी जी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से। है ना? तो प्रॉपर्टी बिल्कुल, वैल्यू प्रॉपर्टी की डीड में अलग होती है, जिसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यू बोलते हैं। दैट कुड बी द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द गवर्नमेंट। जबकि प्राइस वी हैव पेड इज द प्राइस वी हैव पेड, कितने में खरीदी। साधारण भाषा में आदमी बोलता है कितने की प्रॉपर्टी, कितने में ली प्रॉपर्टी, करेक्ट ना? जिसको अपने अंग्रेजी में बोल सकते हैं मेमो ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अमाउंट पेड। ठीक है, तो एक अमाउंट हो गई। तो तीसरा आइटम, हाँ लोकेशन। लोकेशन मतलब ये जो भी तो मैं जिस प्रॉपर्टी की, यस सर, जिस भी प्रॉपर्टी की सेल हुई है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। एड्रेस, तो Yes, लोकेशन नहीं बोलते उसको, बोलेंगे एड्रेस। ठीक है ना? Okay. चलो एड्रेस हो गई। और सर टाइटल होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी, कि किनके एक प्रॉपर्टी हमारे पापा के नाम में है, दादा के नाम में भी होगी। नहीं वो तो आ गया ना, बायर सेलर में आ गया ना वो तो। ओके ओके। वो तो बायर सेलर में आ सर गया। मेजरमेंट आते हैं, हाँ मेजरमेंट ऑफ Measurement. लैंड। नहीं लैंड कैसे पता चला? मैंने तो प्रॉपर्टी बोली है, तो लैंड बोला नहीं मैंने तो अभी तक। यस, वो भी हो सकते हैं कि प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट है कितने एरिया में वो नहीं है। तो हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि प्रॉपर्टी क्या है। जमीन है, मकान है, घर है, शेड है,
जंगल है, कमर्शियल। क्या है भाई? करेक्ट। जी सर। तो हम जानेंगे व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का टाइप क्या है ना? और क्या मिलेगा इसमें? सर प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि हमारे कितने कितने फ्लोर हैं, नहीं अच्छा, कितने एक चीज रूम बताओ, हैं। एक चीज बताओ, किसी भी आदमी को, किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट है क्या कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास है उसका मालिक कौन था, उसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था? इस इंटरेस्टेड है किसी को? कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो प्रॉपर्टी के अंदर में अब ये बता सकता है कि बायर सेलर कहाँ मिलेगा? फर्स्ट पेज पर। यस सर, ठीक फर्स्ट है, पेज। तो इसको क्या बोलते हैं? बायर सेलर को बायर सेलर भी बोलते हैं, वेंडर भी बोलते हैं, है ना? वो फर्स्ट पेज मिल जाता है कि किसने किसकी की चीज है। तो आपके फादर अगर या मदर या पेरेंट्स कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी ली, तो सर्टेनली मदर का, फादर का, किसी का नाम होगा। अब मालूम पड़ता है कि मदर फादर का नाम ही नहीं है अगर है, तो इसका मतलब कुछ और हो सकता है ये जो डीड नहीं है जो हम लोग रेफर कर रहे हैं, है ना? हो सकता है और की गिफ्ट डीड होगी। तो प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे हम? बायर और सेलर। फिर हम क्या देखेंगे? मेमो ऑफ कंसिडरेशन। तो प्रॉपर्टी डीड के लास्ट में आप चले जाओगे तो लास्ट पन्ने के ठीक पहले पन्ने में मेमो ऑफ कंसिडरेशन मिल जाएगा। उसके ठीक 2 पन्ना पहले आपको मिल जाएगी कि प्रॉपर्टी क्या है, ये फ्लैट है, एरिया कितनी है, कौन सा तल्ला है। यू गेट टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी डिटेल्स, कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स मिल जाएगी, टाइप मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। लास्ट पन्ने में मिल जाएगा कि प्रॉपर्टी साइन की भी है, उसकी वैल्यू क्या है। तो किसी भी प्रॉपर्टी की डीड, चाहे वो 50 पन्ने की हो, 200 पन्ने की हो, 500 की, उसे कभी नहीं डरना है। फट से आदमी 5 मिनट के अंदर में एक समरी बना देगा कि कौन बायर है, कौन सेलर है, प्रॉपर्टी क्या है, ये फ्लैट है, लैंड है, उसकी एरिया क्या है, कितने रुपए में डील हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और ये डीड रजिस्टर्ड है कि रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है ना? बट अगर हम डीड को देखते हैं तो हो सकता है 200 पन्ने की हो। तो इससे हम क्या सिखाना चाह रहे हैं कि हम रियल लाइफ में हम चीजों के प्रति अजम्पशन कर लेते हैं, हम चीजों को देख के घबरा जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो हम लोग जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात करते हैं इसमें कहते हैं भाई क्यों घबरा रहे हो, अब हमें डीड को पता नहीं पड़ना। तो अब डीड में हम तो लॉयर नहीं है ना, हम कौन है? तो हम अपना रोल प्ले करते हैं कि हमारा रोल क्या है भाई, हमारे पास सीनियर है कि सीनियर नहीं है। जैसे मदर का मैंने एग्जांपल दिया, तो मदर को पता है कि इस बच्चा मेरा और मुझे ख्याल लेना है, तो सारे निर्णय ले लेती है ना। वो अटकती है तो पूछ लेगी हस्बैंड से, जिस किसी फैमिली मेंबर से। तो हम लोग भी जब भी कोई काम करेंगे हमें काम से घबराना नहीं है, काम को अप्रोच करना है, और हरदम शॉर्टकट टेक्निक है कि हमारा रोल क्या है। तो डीड पढ़ने का रोल ऐसे हो गया। वैसे ही हमें बताएं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में सेशन में जब भी, जैसे इनकम टैक्स का फॉर्म होता है। अब फॉर्म भरने में उसके कई की प्रिंसिपल्स होंगे। इससे प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया ना कि प्रॉपर्टी के अंदर में आपको ये 4 चीज मिल गई। अब ये 4 चीज आपके अनुकूल है, मान लीजिए फादर का नाम मिल गया आपको, तो चलो मिल गया, काम खत्म। अब सेकंड आता है कि हमें क्या चाहिए, तो वो आगे की बुक से म्यूटेशन होना चाहिए, म्यूनिसिपल टैक्स रसीद होनी चाहिए, वो सेकंड पॉइंट आ गया। बट डीड को देखने के लिए 100 पन्ने से डरना नहीं, कहने का मतलब है, बिकॉज वी आर नॉट लॉयर। हम लॉयर की तरह उसके सारे टाइटल को, उसके लिख को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक समय होता था जब स्टूडेंट कंप्यूटर सीखने जाता था ना, तो वो क्या करते थे, कंप्यूटर स्कूल में जाते, एनआईटी में गए, मान लो कोई एक स्टूडेंट एनआईटी में जाता है, एपटेक में जाता है, एप्पल में जाता है, कहीं पर भी, और बोलता है मुझे कंप्यूटर सीखना है। वो क्या सोचेगा आदमी? वो ये मानेगा कि कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने आया है, वो सारे कोर्स के नाम बता दे। और मैं आपको बताऊं, अभी तो नहीं हो रहा है, बट आज के 15 साल पहले एक बच्चा बोलता था पेरेंट्स को कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। उसका पेरेंट बोलता भैया अच्छे से स्कूल में जाके सीखो। वो चले जाते एनआईटी, इन सब में, वहां पे 1.5 लाख 1 लाख की फीस देते, 1.5-2 साल कंप्यूटर सीखते, और बाद में बोलते अरे मुझे जो सीखना था वो तो सीखा ही नहीं। और फिर हमारे यहाँ जब वो काम करने आते ऑपरेटिंग का, डेटा ऑपरेटिंग, टैली का, तो हमें मालूम पड़ता 1.5 लाख रुपया खर्चा करके आ रहा है। तो पूछते भाई खर्चा क्यों किया? तो सर कंप्यूटर सीखना था। अरे तो कंप्यूटर सीखना था तो टैली क्यों करने आया अभी तुम? तो सर ऑफिस में काम ही तो करना है। तो मैं आपको बताऊं, एक जमाना था, एक समय था कि हमें ये नहीं पता था कि कंप्यूटर सीखने का मतलब क्या है, कि क्या कंप्यूटर का कोर्स सीखना है, कि टैली चलाना सीखना है, कि एक्सेल चलाना सीखना है ना? तो हम जब काम करेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर में, तो हम अजम्पशन से हरदम दूर रहेंगे, चीजों को समझने में क्लैरिटी लेके आ जाएंगे। ठीक है ना? सो
ये चीजें हैं। मतलब देखो 1 घंटे तो हो गए, ग्रेस्प पावर कितनी है? थक तो जाते होंगे ना सब हम लोग अभी तो। नो सर, 5 घंटे क्लास ली है सर। पर देखो बताता हूँ मैं, इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ना हम लोग चूंकि प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं और प्रैक्टिकल डीलिंग करने वाले हैं, और जब चैट ग्रुप बनाया है ना, तो मुझे ये उम्मीद रहेगी कि आने वाले वीक तक या आने वाले 5-7 दिन में हर आदमी चैट ग्रुप में अपने से संबंधित कुछ सवाल को लेकर डालेगा। अब जैसे सतीश सर ने बोला ना कि सवाल के कुछ रूल्स हैं, तो मैं एक रूल ये बता दूं कि सवाल के जब हम सवाल पूछेंगे ना तो वोमिटिंग नहीं करना है। अब कोई बता सकता है क्या कि वोमिटिंग करने का मतलब क्या हुआ चैट ग्रुप के अंदर में, कि सर चैट ग्रुप में वोमिटिंग कैसे कर सकता है? कौन एक्सप्लेन बोलेगा? मनीष, ठीक है मनीष बताओ। चैट में अगर हम बहुत ज्यादा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक्सप्लेन बहुत ज्यादा किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या एग्जैक्ट पॉइंट क्या है पूछने का, अगर वो हम सीधा नहीं बता पा रहे तो वहां पे बहुत सारा टाइम लग जाता है रीडर्स को भी, तो वो फिर तो इसको वोमिटिंग करना बोलते हैं? नहीं, इसको नहीं बोल रहा हूं मैं। क्या हो सकता है और बताओ, कोई बोलना चाहेगा? गलती करने में फिर बता दूं, प्लीज ट्राई टू मेक मिस्टेक्स। और जो पल्लवी तुम एकदम शांत बैठी हो, तुम बोलो भाई प्लीज, यू से समथिंग। व्हेन आई से सर यहाँ डोंट रेंज का वोमिट इन प्रॉब्लम है, द, उसके वजह से। हाँ हाँ, यू हैविंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नहीं नहीं सर, यहाँ ओके ओके फाइन। रेंज का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं अच्छा, रेंज का वो वॉइस प्रॉब्लम, ब्रेक होता है मुझे। ओके नो इशू। हाँ, सो कैन यू सो टेल मी कि, वॉमिटिंग मतलब, हाँ हाँ, टेल मी वो प्लीज टेल मी। कंटिन्यूअस मैसेज करते हैं ना सर, कंटिन्यूअस मैसेज करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 10-10 आंसर देते हैं ना, वो वोमिटिंग हुआ। कहते हैं कंटिन्यूअस मैसेज देते हैं ना। और हाँ फैज, फैज बताओ भाई, व्हाट इज वोमिटिंग इन चैट ग्रुप इन योर ओपिनियन? So सर जो whatever चीज Manish नॉर्मल has सर्च said, I करके agree. हाँ सर जो Whatever चीज Manish नॉर्मल has सर्च नहीं mentioned, करके I फैज बोल agree. रहा है, फैज बोल रहा है ना अभी। हाँ Yes, sir. So whatever Manish has mentioned, I agree to that. Making irrelevant points, ओके। unnecessary points. नारायण जी आप बताइए सर। नो आइडिया सर। अरे कमाल आइडिया, क्या चीज गलती करना नारायण भाई। आपको एक ऐसी बात बोलनी है कि सर वोमिटिंग का मतलब हुआ कि मोबाइल के ऊपर वोमिट कर देना, ऐसा बोलो ना। मिस्टेक करो भाई, प्लीज बोलो, लेकिन से समथिंग। एकदम घबराओ मत, एकदम गलती प्रेम से करो बॉस। लिख के मुझ देना, लिख के मुंह देना, अच्छा। और कौन है? देखो वोमिटिंग का, अब देखो आप लोग को बताओ, अब देखो कैसे थॉट प्रोसेस हम लोग गड़बड़ाते हैं। वोमिटिंग का क्या होता है मतलब, व्हाट इज वोमिटिंग? वोमिट को हम लोग रोक पाते हैं क्या? तो वोमिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला सिंपल मतलब कि वोमिट को आप रोक नहीं सकते, आपको वोमिट आ गया तो करना ही करना पड़ेगा, करेक्ट है? यही है तो वोमिटिंग का मतलब। तो वोमिटिंग को हम तो रोक नहीं सकते कि अभी आया है चलो शाम को कर लेंगे, ऐसा होता है क्या? तो कई लोग क्या करते हैं, उनको जब जो दिमाग में आता है उससे पोस्ट कर देते हैं। मैं कह दूं, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट टेक्निक, नेवर अप्रिशिएबल, जिंदगी में मत करो। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग? लोग सोचते हैं भूल जाएंगे। अरे भाई, अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे सामने वाला बंदा जरा सा भी तुमसे सीनियर है अगर, वो तुम्हारे एटीट्यूड के तुमको आउट कर देगा, बोलेगा अजीब आदमी है रे भाई। तो क्या करना चाहिए? हर एक के मोबाइल में नोट्स पैड होता है, नोट पैड होता है, कहीं पर स्केची नोट बोलते हैं, कहीं पर क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम यूज करते हैं, बट नोट पैड सब में होता है आजकल, होता है सब में। जो लोग नोट Yes, पैड sir. यूज नहीं कर रहे हैं वो प्लीज हाथ उठाएं। हम मान रहे हैं सब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो हाथ उठाना है उनको, बट ईमानदारी से, झूठ बोलना नहीं है। लेकिन नोट पैड कोई ऐसा है जो यूज नहीं कर रहा है? नारायण यूज नहीं कर रहा है, और कोई? देखो मैं बताऊं, आप लोग हमारे साथ जब हो ना, तो आप लोग सब मान लो, आप में सब में इतना पावर है कि आप लोग को कोई बाल बाका नहीं कर सकता, किसी को इंसल्ट नहीं कर सकता, समझ गए? तो गलती करने में पीछे मत रहिए, क्योंकि मैं आपके हर एक्शन, हर मूवमेंट, हर काम को नोट कर रहा हूं, और मेरी ट्रेनिंग के अंदर वो सारा फैक्टर आएगा। तो आज अगर आप मेरे माइंड को अगर अपना रॉन्ग इंप्रेशन दे देते हो, तो हो सकता है कि मेरा ट्रेनिंग का डायरेक्शन आपके प्रति बदल जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको वो आता है।
ठीक है। सो एकदम बहुत ईमानदार फेयरनेस से ट्रेनिंग होनी है ये, नहीं तो आपको आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। तो नोट यूज करते हैं, वेरी गुड। तो अब नोट के अंदर में हमें जब भी कुछ सवाल पूछना है आपको मेरे से सतीश सर से, उसको पहले नोट पे टाइप करो आप, ठीक है ना। नोट पे टाइप करके फिर सोचो कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्या आपके लाइफ के कंसर्न है या क्या पर्पस है। सबसे पहले आज की ट्रेनिंग के बारे में अपने कमेंट करना। देखो और एक चीज क्या होती है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो इसके बैठने में आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया, आपको कुछ मीनिंगफुल लगा कि नहीं लगा। बी फेयर टू राइट, बिकॉज अगेन बताऊं, हम लोग ने ये सिलेक्शन ग्रुप किया है, बहुत लिमिटेड ग्रुप किया है, ताकि इनको हम एक मीनिंगफुल टर्न अराउंड दे सके और इसके मीनिंग हम इसके पर्पस में लगे हुए एकदम बता रहे हैं। तो कहीं भी आपको लगता है ना, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट योरसेल्फ। अब इस मीटिंग के बाद में आप अपने आप को अगर एक्सप्रेस करोगे ना तो जोर आता है। हम जो सोच पाते हैं वो बोल नहीं पाते, जो बोल पाते वो लिख नहीं पाते। तो आप जब लिखोगे मान लो, तो उससे पता चलता है कि आपकी शैली कैसी है। क्योंकि देखो, जो वीकनेस होगी उसी का इलाज करना है, जो स्ट्रेंथ उसका इलाज नहीं करना, जो वीकनेस उसका इलाज करना है। अब वीकनेस क्या है ये खोज के निकालनी पड़ेगी। या अगर कोई भी स्टूडेंट को ये लगे, कोई भी आदमी को लगे कि उसको अपनी वीकनेसेस पता है, आई वुड बी हैप्पी टू नो दैट। मेरे को फिर होमवर्क नहीं पड़ेगा हर इंसान की वीकनेस को खोज के निकालने का, क्योंकि जब तक मैं इंसान की वीकनेस को नहीं खोजूंगा मैं उसको सोल्यूशन नहीं दे सकता हूं। क्लियर है? तो आप अगर डॉक्टर के पास जाके बोलो सर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और क्या दवाई देगा भाई बताओ। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। तो वैसे ही हमारी लाइन के अंदर में हर इंसान में देखो, हर इंसान ने पढ़ाई कर ली, हर इंसान अपनी दुनिया को जी रहा है, हर इंसान 25 प्लस का हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या है, उसको ये नहीं पता कि उसकी क्या प्रॉब्लम, उसको ये नहीं पता कि उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरा गड़बड़ क्या है यार। करेक्ट? और ये निकालना बहुत टफ काम है, आपको बताओ। और ये निकालने में हम लोग एक्सपर्ट है, मतलब कोई डाउट नहीं है। मैं हो सकता है 1 महीने 2 महीने के बाद बता दूंगा कि भाई तेरे में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सोल्यूशन नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। तो आप लोग में जिस जिसको जानकारी हो कि मेरी ये वीकनेसेस है, दे शुड पोस्ट इट डाउन टू मी। Otherwise, please try to summarize whatever you have listened, heard, good, bad, no harm. आपको लगे कि सर मेरे को आज का सेशन एकदम बकवास लगा, ना कुछ समझ आया, ना कुछ आया, बी फेयर टू राइट, नो हार्म। बिकॉज आप जो लिख रहे हो मेरे को उसको देखने का तरीका तो मेरा अपना है ना, मैं उसको कैसे देखता हूं, ठीक है ना। सो दैट इज द वे टू राइट। तो हम लोग का ये देखो तरीका है, मैं बताऊं, और हम लोग बहुत लिमिटेड जाने के मूड में हैं। तो आप लोग अपना एक तो पोस्ट करके डाल लीजिए, अपने क्वेरीज को लिखिए, और चैट ग्रुप में वही बताओ, वोमिट नहीं करनी है, नोट्स पे डालना है, नोट्स पे डाल के क्वेश्चन को फॉर्म करना है, फिर आंसर पोस्ट कर देना है। वी विल ट्राई टू इंश्योर कि हाउ वी गो एंड डू दैट, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर रियल थिंग्स कि उस आदमी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। पढ़ने में प्रॉब्लम है, एग्जाम की प्रॉब्लम है, वर्क की प्रॉब्लम है, बॉस की प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट को समझने की प्रॉब्लम है। तो हमें नेक्स्ट सेशन को कौन सा फर्स्ट लेना उसकी आइडिया लग जाएगी। बट इस सेशन के अंदर में हम लोग टीम्स को भी यूज करेंगे, तो मेरा कहने का रहेगा कि आप अपना टीम्स को भी ना प्रॉपर्ली यूज करो। यूट्यूब लर्निंग चेष्टा करो कि रोज आधे घंटे करो, रोज हाफ एन आवर, शाम को, दिन में, जब भी मौका लगे। यूट्यूब लर्निंग में जैसे टीम्स सीखे आज, तो टीम्स पे यूट्यूब देख लो आज, व्हाट इज टीम्स। और ये बता दूं मैं, टीम्स जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं 2030 में आपको हर आदमी टीम्स यूज करता दिखेगा। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप 7 साल पहले कर रहे हैं, तो आपको आसपास लोग नहीं मिलने वाले, करेक्ट है ना। बट हम लोगों की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम लोग सिर्फ टीम्स पे बात करेंगे, हम लोग व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे। अगर हम लोग बातें भी करेंगे तो टीम्स पे ही करेंगे, जो कुछ सब कुछ। तो आपको दिमाग में क्लियर है कि व्हाट्सएप पे कुछ नहीं है, जो है सब टीम्स पे है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हम लोग आज का सेशन फर्स्ट यही रखते हैं। आप लोग भी थोड़ा ग्रेस्प करो, फीडबैक दो, अपडेट दो, और लेट सतीश सर हैंडल एंड सी व्हाट ही हैज टू से फर्दर। और भी कुछ और टेकअप करना है क्या? एक दिन के लिए बहुत है फर्स्ट सेशन जो है ना, आज तो मतलब वार्म अप हो गया कि भाई क्या होने वाला है, क्या चीज है, मतलब कोई आपको आज वैसे झलक मिला है, इट इज द स्टार्ट। अच्छा आप लोग ही बोलो थोड़ा, आपको कैसा लगा, मतलब एक एक, अगर हम आपको बोले कि 30 सेकंड में बोलना है शॉर्टेस्ट वे में, कि क्या लगा? लाइन से एक नाम बोलो तो एक एक करके। नवीन ठाकुर, क्या लगा अभी 1 घंटा में, क्या लगा?
सर मुझे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ही अलग ही तरीके से लगा, कोई नॉर्मल कोई ऑर्गेनाइज तरीके जैसे अभी कि हाँ इसी बारे में बताना है या इसी बारे में सिखाना है, ये नॉर्मल जैसे कि अंदर क्या तुम्हें प्रॉब्लम और तुम्हें क्या कमजोरी है वो बताना मुझे बड़ी बात लग रही है सर। वही है जो मेन लाइफ में प्रॉब्लम करती है आगे जाके। और चीज़ तो सीख ही सकते हैं, लेकिन जो क्या दिक्कत है हमारे में और क्या हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो मेन चीज़ है सर, जो यहाँ पर नया चीज़ मिल रहा है। क्या लगा अभी 1 घंटा में भी, मतलब क्या आपने सीखा, क्या समझा? इसको बाद में वापस ग्रुप में भी लिखिएगा। हाँ वो तो लिखना ही है। हाँ वॉमिट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नो वॉमिटिंग। बट क्या सीखा उदित, क्या लगा, मतलब अभी तक क्या मन में आया, कुछ अपनी फीलिंग्स बताइए। यस सर, बहुत अच्छी फीलिंग्स है सर। मतलब जो सर ने जो भी मिस्टेक की बात करी, जैसे मुझे कमी बताऊं, मैं स्टार्ट बहुत अच्छी कर लेता हूँ। मतलब चीजें बहुत जल्दी स्टार्ट करता हूँ, कोई नई चीज लगती है मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो सर ने बोला ना अपना बच्चा बना लो, मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ही है, 2-3 वीडियो ही डाली हैं, पर मैं अब 10 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं किया उसका, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब वही है कि हम बच्चा मतलब अपना बच्चा बना लो किसी काम को। बहुत अच्छी लाइन, मतलब बहुत से टच हुआ मुझे वो। वेरी गुड। तो सर कुछ अलग ही मिलेगा करने को, यस सीखने को। यस नीरज। सेम मुझे भी वही लाइन बहुत अच्छा लगा, जब किसी चीज को बच्चा बना लो तो अच्छी से मिलेगी। और फिर सैड ने बोला जब वीकनेस में हम बहुत काम कर पाएंगे। बहुत चीज रहती है जो हम लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, फिर उसको कंसिस्टेंट रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसमें भी थोड़ा यहाँ पर बहुत इनहेंसमेंट मिलेगा और भी नई नई चीजें जानने मिलेगी। जैसे मैंने भी टीम के बारे में पहले कोई यूज ही नहीं किया, वो भी आज जानने मिला जे ये अच्छा है। और भी बहुत कुछ इनहेंसमेंट होगी, तो वही इनहेंसमेंट अच्छा लगा है। बाय द और वे बहुत टीम्स है ना, पेड अकाउंट है। इसका मंथली कॉस्ट 675 रुपीज कुछ है पर मंथ। आप लोग के लिए नहीं है। ये गिरीश सर का जनरोसिटी आप लोग के लिए, कि आपको सिखाना ही है टीम्स। थैंक यू जैसे सर। यहाँ पर हम लोग इंटरेक्शन भी कर पाएंगे अच्छा से सेट से आप लोग से, क्योंकि बहुत जगह में होता है हम लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते जिससे सीखते हैं। बस वो लोग दे देते हैं क्लासेस और छोड़ देते हैं एक ग्रुप बना के। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, अच्छा से डिस्कस होगा अपने पॉइंट्स में, जहाँ पर वीकनेस है जहाँ पर अच्छा है। ये बहुत हेल्पफुल होगा हम लोग के लिए। यस थैंक यू। यस पल्लवी, व्हाट डू यू फील? पल्लवी सर हेजिटेट करना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता नहीं है। हाँ सर, प्लीज मुझे पता नहीं है, वो डायरेक्टली हाँ डायरेक्टली बताना चाहिए। मुझे वो पता नहीं है, उसकी वजह से मैं सर बता रहे थे ना, उसकी वजह से मुझे फील हुआ मैं कितना दबा के बैठी थी। एक्चुअली हमें वो एक्सप्लोर करना चाहिए, हेजिटेट करना चाहिए मिस्टेक बताने के लिए। मिस्टेक कर वो हाँ, मतलब वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो नहीं सोचना चाहिए। मुझे क्या है तो डायरेक्ट पूछना चाहिए और मुझे समझना चाहिए। उसकी वजह से मैं ग्रो कर सकती हूँ। यस मिश्रा जी। ये बहुत अच्छा सेशन था सर, और इसमें ये पता चला कि थियोरेटिकल नॉलेज तो हर जगह मिल जाती है, पर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल के लिए प्रैक्टिकल जो एप्लीकेबल करने को है आगे, उसको ग्रास्प करना चाहिए, समझना चाहिए। और जो चीजें नहीं आ रही हैं तो हेजिटेट नहीं होना है, उसको पहले हम खुद से ट्राई करें, कि चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो किसी सर्कल में हो या फिर फ्रेंड सर्कल में हो, उस चीज को हम जानने की कोशिश करें। ये डायरेक्ट हम ना कहें कि नहीं आता है, ठीक है, पहले हम ट्राई करें कि उस टाइम को यूज करके, अगर टाइम एक्स्ट्रा है तो टाइम को यूज करके उस चीज को और जगह से भी खोजने की कोशिश करें, तो वहां से भी सीख सकते हैं। गुड, वेरी नाइस। यस अंतरा। सर पहले तो आपने आईडी हमारे साथ शेयर किया, तो हम एमएस ऑफिस वगैरह सारे टूल्स यूज कर पाएंगे, और एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी सीख सकते हैं अभी बाकी लोगों से पहले, जो हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आपका माइंडसेट हमें पता चला कि आप
वर्क को कैसे अप्रोच करते हैं। तो आर्टिकलशिप में भी हम वो ट्राई करेंगे कि जब हमें कोई काम नहीं आ रहा तो हम सीनियर से पूछेंगे, अपना बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। ये सर सतीश सर ने भी हमें काफी टाइम बताया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके अलावा एक वेकअप कॉल भी था कि हम पढ़ाई करके उसको भूल जाते हैं, लेकिन हमें उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है, तो वापस एग्जाम खत्म होने के बाद भी देखते रहना है चीजों को, ताकि भूले नहीं। यही था सर। थैंक यू। वेरी गुड, वेलकम। आदर्श। सर जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉर्पोरेट में जैसे हम आर्टिकलशिप में जाएंगे तो जो मैसेज आते हैं कि उनके रिएक्ट का भी होता है, वो करेंगे, उससे ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि मतलब देखते भी है जैसे कि कोई मैसेज करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे यस सर वो भी होता है। और जैसे +1 हाँ तो सबसे वाहियात लगता है कि +1 क्यों डाल रहा है। हाँ, तो वो बढ़िया ही होता है कि रिएक्ट कर दो कि मतलब पता ही चल जाता है सबको। और जैसे कि वीकनेसेस में होता है, मतलब ऐसा होता है कि हर बार जैसे भी कोई कोर्स का जैसे देखता हूँ मैं, तो जब ऐसे मैंने क्या बोलते हैं कोई नया कोर्स देखता हूँ, तो वो ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मतलब अच्छा चल रहा है हमारे कोर्स से, वो मेरे को रोकना पड़ेगा। अपने कोर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट रहना, कि मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि ये वाला भी अच्छा चल रहा है कोर्सेज इसमें। बस So मैंने कुछ notes लिखे हैं। So I thought this class was more of a orientation program, though I was expecting कि आज contents वगैरह कुछ share किया जाएगा सर की तरफ से। पर हाँ, बबल भी ब्रेक हुआ है कि कैसे एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करना है और हाउ मेकिंग मिस्टेक्स वोंट मेक यू सीम लाइक अ फूल। ये सबसे बड़ा आज का मेरा लर्निंग रहा है। और ये भी सीखा कि कैसे अपना खुद देना है, हाउ टू इनिशिएट थिंग्स एट योर ओन। ये सब सीखा आज। यही था सर। गुड। इट वाज अ गुड सर। यस नारायण। पहले तो सर थैंक यू सर दिस टाइप ऑफ सेशन। एक्चुअली मेरे को सर लगा था जब खुद पे इन्वेस्ट करना है सब सतीश सर के पास जाओ, उससे ज्यादा रिटर्न कोई नहीं दे सकता है। तो मेरे को लग रहा है वे और सेशन था, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है। एंड मेरे को लग रहा है लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगा और यहाँ से लाइफ रीबिल्ड होगा शायद। बाकी सर के ऊपर है और हम कितना ले सकते हैं मेरे ऊपर है। थैंक यू सर। नहीं सर निकाल भी लेंगे, मौसम बता रहे हैं। आप कितना ले सकते हो नहीं है, क्लासेस और हमसे जुड़े रहे हैं ना, तो हम सबसे निकलवा लेंगे, हम बता रहे हैं। थैंक यू सर। यस मोहसिन, आपका कैमरा ऑफ ही है, मतलब क्या चक्कर है मोहसिन? जी सर, ये सब है खजाना सर उसके पीछे, कैमरा के पीछे कुछ खजाना छुपा रखे हो जिसका टिकट लगेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं सर। दिख रहा है क्या? हाँ, इतना सुंदर चेहरा क्यों छुपा रखे हो? सॉरी सर। जी बोलिए। एक्चुअली सर जो पहले ही बोले कि हम लोगों के पास कॉमन सेंस है एंड वी कैन डू एवरीथिंग, सो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरा है कि सर कॉन्फिडेंस लाना है एंड जो भी कुछ है वो अटेम्प्ट करना है सर, कि घबराना नहीं है। और कि जैसे कि सर बोले कि जो यूटिलिटीज है जैसे कि एसी, तो वो अब चला नहीं पा रहे, तो इसी वजह से अब दूसरे को बोल रहे। लेकिन वो देखना चाहिए कि क्या मैं भी कर सकता हूँ क्या। तो ये मुझे अच्छा लगा और आज का सेशन भी बहुत अच्छा गया सर। जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते, रियल लाइफ में होते, वो सब सर बताए हैं, जो दूसरे क्लासेस में होते नहीं है। जैसे कि प्रॉपर्टी डीड्स के बारे में कुछ बताए हैं सर, वो भी अच्छा लगा सर। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है, आज प्रॉपर्टी डीड के बारे में पता चला, तो जी सर। अगला अगला 2 दिन में कितना डीड पढ़ने वाले हो आप? सर डीड मिलेगा तो वैसे डीड है, पहले डीड खोजो अपने घर का, अगर है तो चेक हाँ जी करके सर। देखो कि आपको रेफर करना आता है कि नहीं। अगर है जो भी रेंट एग्रीमेंट है या ओनरशिप एग्रीमेंट है, जैसा भी है,
हाँ जी सर, बहुत जाके सारा अगर पापा टाइप्स को रहता है। बोलेगा कि डील दीजिए तो पापा क्या बोले ये क्यों मांग रहा है? नहीं, पापा को पूछे कि पापा ने डीड देखी है क्या, मतलब बताऊं लोग देखते नहीं है, डीड देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जो भी है जी सर। डीड आप देखो, मांगो, समझो, नहीं है तो समझो कि नहीं है, और होता तो थोड़ा अगेन यूट्यूब जिंदाबाद, गूगल जिंदाबाद, कि इंडिया में या तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे शहर में, हर स्टेट शहर में अलग अलग तरीके से कई बार कुछ डीड बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से। तो आप उसको सर्च करके देखिए, खाली अमेरिका का देखेंगे तो देखिए कैसा बनता है, इंडिया का देखिए, ज्यादा बाहर का नहीं देखना है, अपने लोकेलिटी का पहले देखना है, हर लोकल लैंग्वेज का भी कुछ एलिमेंट उसमें दिखता है। इसमें मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर जिनके पास अगर घर में अगर मान लो डीड है तो वो रेफर करें, अच्छा सीखने मिलेगा प्रैक्टिकल कि हाउ टू रेफर डीड जो कि आपकी खुद की है, और नहीं तो कोई बात नहीं। क्या करना चाहिए, आज के दिन हर स्टेट में हर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। तो सपोज करो कोई आदमी बंगाल में अगर है, तो बंगाल में अगर है तो वो अपने एड्रेस के बेसिस पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है हर अलग अलग, जिसको कोई रजिस्ट्रेशन बोलता है, कोई अपनी संपत्ति, कोई अपना अपना प्रॉपर्टी, अलग अलग नाम से है, हर स्टेट के अंदर में अवेलेबल है जो चीज। तो आप जहां रहते हो उसी को सर्च करने की चेष्टा करो कि मैं जहां हूं, जो एड्रेस है मेरा, है ना, उस एड्रेस को अगर मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के डेटाबेस पे जाके खोजूं तो मैं कुछ निकाल पा रहा हूं क्या, कि वहां पे प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में कोई जगह बताओ, जैसे खतियान बोलते हैं लोग, हम लोग कोई पर्चा बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीड बोलते हैं, म्यूटेशन रिकॉर्ड बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, बहुत तरह के नाम होते हैं। तो आप जहां पर भी हो, चाहे भाड़े का हो, ओनरशिप हो, जिस किसी का हो, है ना, उसके बारे में सोचो कि मुझे अगर ये प्रॉपर्टी को खोजना है वेबसाइट पे जाके तो मैं कैसे खोजूं। वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आप तो रह रहे हो, और उसमें जो जो आप कर रहे हो उसको स्टेप लिखो कि मैं ये ऐसे किया, गूगल पे जाके खोजा नहीं मिला, ये किया नहीं मिला, ये किया नहीं मिला, लेट अस बी फेल, नो हार्म, ठीक है ना, बट ट्राई टू फाइंड कि क्या क्या तरीके गए। तो ये जो हुआ ना, इससे पता चल जाएगा कि जब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम सीए बने ना तो हमें लगता था कि हम जब फेल होते हैं ना तो फेल होने की जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं, तो हम फेलियर को ना किसी दूसरे पर टांग देते थे, सिचुएशन पर, गवर्नमेंट पर, आदमी पर, और कोई नहीं मिला तो क्या करते हैं मालूम, अपने गॉड पे टिका देते हैं कि भैया भगवान ने नहीं दिया, काम खत्म। जब मेरे क्लाइंट लोग के साथ जब डील करना शुरू किया तो जिसमें 2-3 बहुत सक्सेसफुल क्लाइंट थे, मतलब सुपर सक्सेसफुल, उनके साथ मुझे एहसास हुआ कि फेलियर जो है ना हमारे हाथ में है, पास हमारे हाथ में है। तो वही माँ वाली थ्योरी जो हुई है वहां समझ आई कि माँ फेल नहीं हो रही है, उसको आता कुछ नहीं है, बट वो फेल नहीं होती, वो फेल आता ही नहीं उसको होना। तो हमने हमारी लाइफ में वो टेक्निक बदला कि अरे भाई कुछ तो सोल्यूशन है, तो हमें सोल्यूशन बेस्ड माइंड होता है। तो आप लोग हर एक को, अगर डीड मिली डीड पढ़ो, डीड नहीं मिली तो जहां पे आप रह रहे हो, गांव देहात खेत शहर जो भी है, समझो कि मुझे इसी का पता अगर वेबसाइट से निकालना है तो कौन सी वेबसाइट है, 1 2 3 4, फन है, गेम है, ओपन है। हो सकता है किसी को निकल जाएगी तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे वाह मेरे ही घर का पता निकाल लिया। मालूम पड़ेगा कि कोई आप ही का घर है और आप खोज करके मालूम पड़ा जा बाबा ये घर तो किसी और के नाम पे रिकॉर्ड है, तो पापा को पूछ सकते कि पापा ये तो अपना घर है, जिस आदमी के नाम में कैसे है, तब बोले अरे हम लोगों ने म्यूटेशन नहीं कराया अभी तक। तो हो सकता है पापा को हेल्प मिलेगी कि चलो तुम म्यूटेशन करा के नक्की करो भाई, है ना। तो ये प्रैक्टिकल वर्क सबको करना चाहिए, और अपना नोट बना के रख लीजिएगा। बनाने के बाद में एक सिंगल पेज डालिएगा कि प्रॉपर्टी पे सर्चिंग करके कंक्लूजन क्या निकला, तो नेक्स्ट क्लास के पहले उसको चैट ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, और बाकी अपनी में क्वेरीज को नोट्स में डाल लीजिए, तो उसको फिर बना के डाल सकते हो, ठीक है ना। चलो सो ठीक है, आई थिंक इट्स टू मच। अब आपको भूख लग रही होगी, अब आप जाइए, है ना। अपने बस छोटा सा टास्क है, अपना जहां पे भी रहते हैं उसको गवर्नमेंट के डेटाबेस में सर्च करना है, चाहे पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे वेस्ट बंगाल में क्या नाम है, कैसे सर्च करें। अब इस काम को अपना बच्चा बना लीजिए, और जैसे तैसे जब तक ना हो तब तक हार मत मानिएगा। पूछिएगा मत किसी से, लेकिन हाँ ये नहीं कि लॉयर से पूछ के पता कर लिया, ऐसा ये नहीं कि दोस्त से पूछ लिया, वो अपने काम बाद में कर लेंगे, वो अपने बाद में सिखाएंगे, पहले खुद ट्राई करो जितना भरपेट होके हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो देन, चलो सी यू ऑल, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय, थैंक यू, ऑलराइट, सी यू ऑल, थैंक यू सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर।